नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स के वो क्वेश्चंस जो हर साल रिपीट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट कॉमर्स का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। इसी वजह से कुछ क्वेश्चंस हर साल आते ही आते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल फिक्स होते हैं, जैसे विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, AS2, AS10, AS11 और AS18। तो इसका आंसर है AS2। अकाउंटिंग सेक्शन 2 इन्वेंट्रीज के वैल्यूएशन के बारे में होता है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होता है। नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन दिस टॉपिक इज AS10 deals with which area? Government grants, property, plant and equipment, foreign exchange or revenue. So the answer is AS10 PPE यानी machine, building, furniture से related होता है। बहुत common question है। Next topic is costing. कॉस्टिंग से नेट में 3 से 4 क्वेश्चंस पक्का आते हैं, स्पेशली BEP ब्रेक इवन पॉइंट, PV रेशियो, वेरिएंस एनालिसिस इसमें से। So break even point increases when selling price increases, variable cost decreases, fixed cost increases और contribution cost increases. So the answer is fixed cost बढ़ने पर break even point भी बढ़ता है। ये basic concept है और repeat होता रहता है। Next is PV ratio का formula. PV ratio is equal to contribution upon sales, sale upon contribution, fixed cost upon sales, profit upon sales. So PV ratio का simple formula है contribution divided by sales. Students यही गलत कर देते हैं, इसलिए repeated question है। Then next topic is management theory. Management theory से एक या दो direct questions every year आते ही आते हैं, लाइक टेलर का, फेयोल का, वेबर, मेयो, इनमें से किसी की भी थ्योरीज में से क्वेश्चन आ सकता है। रिपीटेड क्वेश्चन इज हु गेव द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज? एल्टन, मायो, टेलर, फेयोल या वेबर? सो द आंसर इज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर ने दी थी। वेरी पॉपुलर रिपीटेड क्वेश्चन इज। देन फेयोल के प्रिंसिपल्स कितने हैं? हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर गिवन बाय फेयोल, हेनरी फेयोल? 10, 12, 14 या 16? सो फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स हैं। ये यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन है, हर अटेम्प्ट में मिल जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केटिंग। मार्केटिंग से 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही हैं, मोस्टली 4 P's, सेगमेंटेशन, ब्रांडिंग, इनमें से। Repeated question is which among the following is not a part of marketing mix? Product, price, profit, or promotion? So the answer is profit. Why? Because marketing mix के 4 P's, product, price, place and promotion. Profit इसमें नहीं आता है। Next repeated question is market segmentation is done on which basis? Homogeneous groups, heterogeneous groups, both or none? So marketing segmentation similar needs वाले customer की grouping होती है, इसलिए आंसर इज होमोजेनस ग्रुप्स। नेक्स्ट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड पॉलिसीज। सो बिजनेस एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं। LPG है, FDI है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है, इन सब में से क्वेश्चंस आते हैं। So the first repeated question of this topic is LPG reforms were introduced in which year? 1990, 1991, 1992 और 1993? So 1991 वाले रिफॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसका आंसर भी 1991 ही है। नेक्स्ट इज FDI stands for foreign direct investment, foreign domestic investment, foreign development investment और none of the above. So the answer is foreign direct investment. FDI का मतलब होता है foreign direct investment. Simple, but it is repeated every year. Next topic is finance. Finance में cost of capital, leverages, capital budgeting सबसे ज़्यादा repeat होते हैं. So the repeated question is financial leverage is concerned with what? So EBIT, EBT, EPS और sales. So the answer is EBIT. Financial leverage EBIT के change का effect बताता है. Common repeated question is this. Next is NPV becomes zero when IRR is equal to discount rate. IRR is more than discount rate. Sorry, IRR is less than the discount rate. IRR is more than discount rate or none of the above. So the answer is IRR is equal to discount rate. जब IRR discount rate के बराबर होता है तब NPV 0 होता है। हर एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन यही है।
कमिंग ऑन टू मोस्ट रिपीटेड नेक्स्ट टॉपिक्स, जिसमें से अभी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। सो इन्हीं टॉपिक से हर साल रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से कवर कर लोगे तो पेपर 2 में 70 प्लस स्कोर करना इजी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए 50 रिपीटेड एमसीक्यूज का भी वीडियो बना दूंगी। सो कमेंट्स में प्लीज बताइए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।